magnetic field due to an arc. Let us see what will be the magnetic field due to an arc at its center of curvature. So here this is a circular arc of radius r, and we need to find magnetic field at this particular point. So let us again consider a current element. Let's say I am considering this much amount of current element, and the current flowing, this is I, the length is dl. So the value of current element is I into dl. The length of current element is I into dl. So the value of magnetic field due to this current element at this particular point will be magnetic field dB is equal to nu naught over 4 pi into I into dl sine theta. So the position we can draw here, that the position vector of this particular point is like this. This is the position vector. So the angle between current element and position vector is 90 degree. So the position vector is making angle 90 degree, so it will be sine of 90 degree divided by distance square. So this distance is r, so its square will become r square, and we can see the direction due to this will be upward. If we point our fingers here and this point is here, therefore the direction of magnetic field is upwards. And not only the magnetic field is upward due to this element, but due to each and every element which we are going to consider on this circular arc. So if we integrate this, if we just write it like this, 4 pi r square, and it is dl. Now let us integrate this function to calculate the magnetic field. So here magnetic field is B, and it is nu naught I upon 4 pi r square, and integral of dl will become the length of the arc, and we know that the length of the arc is r theta. Length of arc is equal to radius into angle, that is theta. So integral dl will be r theta, r theta. So we can cancel one r from here, and one r will be remaining. So magnetic field is equal to nu naught I upon 4 pi r into theta. If we write it in one more shorted way, we can also write it as nu naught I upon 2r into theta upon 2 pi. Into theta upon 2 pi. Why I have written this in this way? Because dear students, please note that this particular magnetic field is due to the entire circular loop. Entire circular loop. If the loop is complete, or if the circle is complete, then the angle which is forming here is 2 pi. The angle over here is 2 pi, and the magnetic field at the center is nu naught I upon 2r. So if we calculate the magnetic field per unit angle, so it will be nu naught I upon 2r divided by 2 pi. And if we want magnetic field only due to 2 theta, only due to 2 theta, if we want magnetic field only due to 2 theta, so we can multiply, only due to theta, so we can multiply it by theta, or theta upon 2 pi. So this is the magnetic field due to complete ring into theta upon 2 pi. So this will be our magnetic field due to a circular arc. And here the direction can also be determined by circumambulating these fingers in the direction of flow of current. So if we do fingers like this, the thumb is coming in the upward direction, or magnetic field over here is in upward direction. Let us take some examples to understand this concept of magnetic field due to a arc. Suppose if I have a semicircular arc, this is a semicircular arc, and suppose current is coming like this, and this wire is forming a semicircle, and finally this current is going from this particular wire. Let's say this is an infinite wire, and here it is having a semicircular shape, and if the radius of this semicircular shape is r, so we can see that this particular portion is forming the arc, semicircular arc, and magnetic field at center, if we want to find magnetic field at this particular center, so magnetic field due to this wire will be 0, because it is the axis of this wire, and as well as magnetic field due to this wire will also be 0. So the magnetic field due to this particular wire will be nu naught I upon, this I is the current in this, nu naught I upon 2r into theta upon 2 pi. So for this, theta is how much? This is theta, and this theta is equal to pi. So if we substitute here pi, so we will get nu naught I upon 2r into pi upon 2 pi.
So we can cancel this pi and pi. So magnetic field is equal to nu naught I upon 4r. And the direction will be, we can see here the current is flowing in the clockwise sense. So if we curl our fingers in clockwise, the thumb is coming in the downward direction. Therefore the magnetic field is in the downward direction. So here we will put a cross sign. Another question, let us say if we have a, suppose we have this quarter circle. This is a quarter circle and we want to find magnetic field due to this quarter circle of radius r at the origin. Suppose this is x-axis and this is y-axis, and current is flowing only in this particular quarter circular wire. So we need to calculate the magnetic field at the center. So here the magnetic field, here this theta is nothing but 90 degree. Here theta is 90 degree or pi by 2. Therefore the formula for magnetic field will become nu naught I upon 2r into pi by 2 upon 2. So it is nu naught I upon 2r, and in place of theta we will substitute pi by 2, and here we will put 2 pi. So this pi and pi will not cancel, and 2 2s are 4 and 4 2s are 8. So magnetic field at the center is nu naught I upon 8r. And again if we give the direction, here also the current is flowing in the clockwise sense. Therefore the thumb is downward. Therefore the magnetic field is also downward. Let us take some few more questions. Suppose if I take wire like this. This is a wire, infinite wire, and it is in this particular shape. Infinite wire is in this shape, and let's say current is flowing in this sense. Current is flowing like this, and we need to calculate the magnetic field at the center of this wire, center of this particular semicircle. So dear students, if we see here, we have this semi-infinite wire. Here we have this semi-infinite wire, and due to semi-infinite wire we know that the magnetic field at this particular point is nu naught I upon 4 pi r. Nu naught I upon 4 pi r, and here the direction due to this is current is flowing in this direction. So we point our thumb there, and if we put our 4 fingers here, like say if I point thumb here and put my 4 fingers towards this particular point, so my palm is coming downward. So the magnetic field due to this particular wire, this semi-infinite wire, is downwards. So I can write here, here we have to write magnetic field due to 3 elements: magnetic field due to this semi-infinite wire, magnetic field due to this semicircular wire, and another is this third element starting from here to infinity, and that is magnetic field due to again semi-infinite wire. So the net magnetic field at the center is magnetic field due to first plus magnetic field due to second and magnetic field due to third. So magnetic field due to first is nu naught I upon 4 pi r. That is magnetic field due to semi-infinite wire, and the direction is downward. Let's say downward. Plus B2. B2 is magnetic field due to this semicircular arc. So if we curl our fingers along this direction of current, the thumb is coming in the upward direction. Therefore the magnetic field due to this semicircular arc is nu naught I upon 4r, and the direction is upward. So I will write it as dot. And due to this particular wire, the current is here, and this particular point is here, so the palm is coming upwards. So magnetic field due to this semi-infinite wire is nu naught I upon 4 pi r in upward direction. So we can see that the magnetic field due to this wire and this wire is getting cancelled out here, because both are in the opposite direction. So we can cancel out both, and the net magnetic field is nu naught I upon 4r in the upward direction. So this will be our answer for this particular case. हेलो एवरीवन, देखिए अब सेकंड एप्लीकेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मतलब एक सर्कुलर कॉइल है, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, इसमें ये हमारे पास एक क्या है, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। और इस सर्कुलर कॉइल का जो एक्सिस है, एक्सिस ऐसे होगा, ठीक है। और इस एक्सिस पे मान लो कोई पॉइंट हमने लिया P, ये पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यही है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब देखो इसमें समझो इस बात तो कि ये जो देखो इसमें अब एक बात को समझो, देखो जैसे ये सर्कल जो है हमने सर्कुलर लिया है,
ये सर्कल ऐसे नहीं है, अब यहाँ पर ये सर्कल मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। तो आप इसको 3D में इमेजिन करना कि ये सर्कल ऐसे बनाया हुआ है इस तरीके से, तभी मैंने इसकी शेप ऐसे बनाई है, ठीक है। ये सर्कल ऐसे है आपके सामने, ठीक है। और इसका एक्सिस क्या होगा, देखो ये एक सर्कल है, इसका एक्सिस क्या होगा, इसके सेंटर में से जो लाइन निकलती है ये क्या होगा, इसका एक्सिस होगा। तो इसके सेंटर से ही हमने इस तरीके से ये एक्सिस निकाला, ठीक है। एक्सिस क्या होता है, बिल्कुल उसके सेंटर से, जैसे एक फ़ैन मान लो, फ़ैन का एक्सिस क्या है, जिस पे वो लटका हुआ होता है ना, जिस रोड पे वो लटका हुआ होता है वो उस फैन का क्या है, एक्सिस है। ऐसी सर्कल का एक्सिस क्या है, इसके सेंटर से जो ये पास हो रही है रोड, ठीक है। तो हमने इसका एक्सिस ये बना दिया, ठीक है ना। और इस एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट लिया P, जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ रहे हो ये बात, ये चीज़ को समझना कि ये सर्कल कैसे बनाया है हमने, ठीक है। अब देखो ज़रा, इस सर्कल में इसकी ये जो रेडियस है इसको हम मान लेते हैं ये A है, ठीक है। और ये जो दूरी है इस सेंटर से, सेंटर ये मतलब ये O है, इस सेंटर से इस P पॉइंट की जो दूरी है इसको हम x मान लेते हैं, क्लियर। और इसमें आपके पास करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। ये करंट फ्लो कर रहा है I, ये अगर ऐसे यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से ये I ऐसे निकलेगा, ठीक है। और इसमें हम स्मॉल करंट एलिमेंट मान लेते हैं। देखो ये पूरे की लेंथ L है इस सर्कल की, ठीक है। और इस स्मॉल वाले की क्या होगी, इतना पार्ट मैंने ले लिया ये, ठीक है। ये क्या हो गया, स्मॉल पार्ट, अगर आप देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सी लगेगी हमें, ठीक है। तो ये स्मॉल जो पार्ट लिया ये लेंथ का हो गया DL, ठीक है जी। और ये पूरा करंट एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, IDL बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं X पॉइंट और इस वाले को Y पॉइंट बोल देते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और इस DL से ये वाली दूरी देखो इस तरीके से बना रहे हैं हम यहाँ पर, ये वाली दूरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, R। DL और P पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होती है, हमेशा R होती है, ये आपको पता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना, देखो चीज़ों को, देखो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से है यहाँ पर। और ये वाला इतना पार्ट, ये क्या ले लिया मैंने, इसका DL ले लिया, इस तरीके से है ये, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, इसका DL लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें 3D में तो कैसे ही हम इमेजिन करवाएं, इस तरीके से आप समझो, ठीक है। और ये जो DL है इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके सेंटर पे ये है, समझ रहे हो बात को, ये चीज़ हो गई ना इसके सेंटर पे। देखो अगर मैं इसको समझाऊंगी आपको, ये इसके सेंटर से एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये वाला P पॉइंट है, तो इसके इस DL से ये वाली दूरी ये हो गई R, समझ पा रहे हो। ये देखो DL से इस P पॉइंट की दूरी ये हमने बना दी R, इस तरीके से बना हुआ है ये R। क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। अब देखो ज़रा एक चीज़ पे ध्यान देना, ये आपको पता चल गया इसके अंदर कि ये DL है और ये जो है पॉइंट ऐसे जो ये बनाया है हमने, ये R बना है, ठीक है। और किस पॉइंट के साथ बना है, यहाँ से जो एक्सिस आ रही है उस पर जो P पॉइंट बन रहा है उस तक ये R है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बायोट-सावर्ट्स लॉ में कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, DL के भी और R के भी, या जो प्लेन कंटेन करता है DL और R उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो देखो इसमें इमेजिन करना आप ये चीज़, ये R पड़ा है इस साइड में, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ R पड़ा हुआ है इस तरीके से, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, R के परपेंडिकुलर। तो इस R के अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर बनाना जरा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ऐसा बनेगा ये। और इसको हम T पॉइंट देते हैं और ये आ गया DB क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया ये, समझ रहे हो ना। ये R और ये जो DB वाली लाइन है इसके बीच में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, समझ रहे हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बायोट-सावर्ट्स लॉ में ये हमेशा क्या रहते हैं, 90 डिग्री रहते हैं। करंट के भी 90 डिग्री होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो DL बोल रहे हैं हम और ये R, इसके भी क्या होता है, ये परपेंडिकुलर ही होता है। क्लियर है कहानी, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये एंगल को मान रहे हैं फाई, ठीक है। वैसे ही ये फाई मान लेते हैं हम यहाँ पर एंगल, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो ये DB है, जो ये DB हमने बनाया है, ये DB किस तरीके से आप करोगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है, दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे। कैसे, देखो इस तरीके से हम बनाए इसमें, ये ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। अब देखो आपको पता है दो कंपोनेंट में कैसे डिवाइड होता है, एक DB कॉस में होता है और एक DB साइन में। मतलब कोई भी चीज़ आप डिवाइड करते हो तो कॉस और साइन में डिवाइड होती है वो, ठीक है। ये बात आपको पता होगी, ठीक। तो देखो अगर ये एंगल फाई है, ध्यान देना, ये एंगल क्या है, फाई है, तो क्या ये एंगल भी फाई होगा, बताओ कैसे बनाया ये मैंने एंगल फाई। देखो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन और एक ये R वाली लाइन, X वाली लाइन और R वाली लाइन के बीच में फाई बना था। अब देखो इस R वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर क्या बना हुआ है, ये DB 90 डिग्री पे है, और इस X वाली लाइन पे ये लाइन क्या है, 90 डिग्री पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइनों के बीच में जितना एंगल होता है तो उनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनके बीच में भी वही एंगल होगा सेम।
बात समझ में आ रही है मेरी? इन दो लाइनों के बीच में कितना एंगल है? फाई है। अगर ये एंगल फाई है तो इस लाइन का ये परपेंडिकुलर हो गया डीबी, और ये एक्स वाली लाइन का परपेंडिकुलर ये हो गया, तो यानी कि इस लाइन का परपेंडिकुलर ये और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये। तो जो इन दो लाइनों के बीच का एंगल है वही एंगल इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी रहेगा। ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई? समझ में आ रही है कहानी कैसे करी है? ठीक है। अब देखो, अगर ये फाई है तो एंगल वाला क्या बन जाता है आपके पास? कोस में, तो डी बी कोस फाई ये बन जाएगा कंपोनेंट, और ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास? डी बी साइन फाई बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। यहाँ पर ये रेडियस ए है, क्लियर। आइडियल क्या हो गया? स्मॉल करंट एलिमेंट हो गया। एक्स ये दूरी है सेंटर से पी पॉइंट की, और आर दूरी है डी एल और पी पॉइंट के बीच की, क्लियर। अब देखो, जैसे ये स्मॉल करंट एलिमेंट ऐसे हमने यहाँ पर लिया था, जैसे इसमें हमने माना था इस तरीके से, अगर मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। ये ऊपर माना था मैंने, ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट ये वाला इतनी लेंथ के लिए ये माना। तो जैसे इसमें माना ऐसे ही नीचे भी मान सकता हूँ मैं, ऐसे यहाँ पर नीचे भी मान सकते हैं ना डी एल लेंथ की। तो अगर ये मैं यहाँ पर ये वाली डी एल लेंथ की ले लूँ, ठीक है, और इसको लिख दूँ मैं एक्स डैश और ये लिख दूँ वाई डैश, ठीक है, तो ये भी क्या बन गया यहाँ पर? करंट एलिमेंट आई डी एल बन गया, ठीक है। तो इसकी वजह से भी सेम कहानी होने वाली है। तो अगर आप ये देखो, ये भी क्या है यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन की उसमें लगेगा, क्योंकि छोटी लेंथ है। मैंने आपको बताया था सर्कल में अगर हम छोटी लेंथ को मानते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमें लगती है, ठीक है। अब देखो, अगर ये दूरी आर थी आई डी एल से पी पॉइंट की, तो ये वाली दूरी भी क्या होगी बताओ? आर ही होगी, सेम ही कहानी है। और ये एंगल अगर फाई है आर और इसके बीच में, तो इधर भी ये कितना होने वाला है? फाई ही होने वाला है, ठीक है। और अगर ये आर है तो ऑब्वियस सी बात है, इस डी एल एलिमेंट की वजह से, या ये स्मॉल जो करंट एलिमेंट आई डी एल है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आर के 90 डिग्री बनेगा। तो आर के 90 डिग्री कैसे बनेगा? इस तरीके से, देख लो या नहीं, ये देख लो, इसके बीच में ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, आर और ये डी बी वाला, ठीक है। तो सेम ही कहानी चलने वाली है। तो ये भी क्या होगा? दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो, अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, एक लाइन ये और एक इसी के ऊपर आएगी, ठीक है, इसी के ऊपर आएगी एक लाइन, ठीक। तो देखो, ये अगर एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? फाई होगा। ये वही कहानी है सेम। देखो, ये वाली लाइन का परपेंडिकुलर ये बन रहा है, और इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर, आर वाली लाइन का परपेंडिकुलर ये बन रहा है, ठीक है। तो दो लाइनों के बीच में अगर फाई एंगल है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होगा? फाई ही होगा। वही वाली बात है ऊपर वाली, ठीक है। तो ये बन गया डी बी कोस फाई, और ये यहाँ क्या बन जाएगा? डी बी साइन फाई। समझ रहे हो या नहीं? क्लियर है? तो यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा? डी बी साइन फाई की वजह से आएगा, क्योंकि डी बी कोस फाई और डी बी कोस फाई क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट होंगे। समझ रहे हो बात को? अब ये डी बी साइन फाई वाली जो कहानी है, देखो इस चीज़ को मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, ठीक। उससे पहले देखो, ये जो हमने लिखा है ये क्या है कि लेट अ सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट आई है इसमें सर्कुलर कोयल में करंट, एंड लेट ओ इज द सेंटर ऑफ दैट कोयल एंड P इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कोयल वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अब देखो जरा, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, आपके पास ये आइडियल क्या था? स्मॉल करंट एलिमेंट था। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता वो कौन सा बनता? डीबी। तो डीबी के लिए आपको फॉर्मूला पता है किसके लिए? बायोट-सावर्ट्स लॉ से, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ। देखो, ये डायग्राम समझ में आया कैसे बना है? अगर डायग्राम समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है डीबी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा आपके पास, क्योंकि स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से ही ले रहे हैं हम, ठीक है। तो डीबी होगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर में आर स्क्वेयर, ठीक है। अब कहानी किसकी आ गई? इस थीटा की। क्या ये थीटा कौन सा थीटा है? ये फाई वाला है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये तो थीटा कौन सा होता है? ये थीटा जो है आपको पता है किसके बीच में होता है हमेशा? बताओ। डी एल और आर के बीच में। किसके बीच में होता है? डी एल और आर के बीच में। अब देखो, डी एल ये है और आर ये है। अब इस चीज़ को आप कैसे समझोगे? देखो, इसमें तो ये आपको लगेगा ही नहीं कि किस तरीके से एंगल हम इमेजिन करें इसमें, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री है। डी एल और आर के बीच में जो एंगल है वो 90 है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो ऐसे जा रही है लाइन, ठीक है, तो थीटा 90 कहाँ है? तो देखो, आप ये वाले ए और आर के बीच में देख रहे हो एंगल, तो वो तो 90 नहीं है। मैं किसके बीच में कह रहा हूँ? डी एल और इस आर के बीच में। देखो, वो यहाँ से इमेजिन करोगे आप कहानी। देखो, ये आपके पास क्या था? डी एल था, ये वाला पार्ट डी एल था, और आर ऐसे है, ठीक है। आर ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा, ठीक है ना, इस तरीके से है, ये टिल्टेड है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो जरा, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपको जो एंगल लेना है वो डी एल और आर के बीच में लेना है। तो डी एल है ये और आर है ये,
तो इसके बीच में एंगल देख लो कितना है, 90 है। यहाँ से देख लो साफ पता चल रहा है। अब देखो ये चीज़ आप ऐसे कर लो इतनी, तब भी 90 रहनी है, क्योंकि मैं इसके और इसके बीच में देख रहा हूँ एंगल, ठीक है ना। और ऐसे कर लो तब भी 90 है, ऐसे कर लोगे अगर आप ऐसे ऊपर कर लोगे तब भी ये 90 डिग्री रहेगा, ऐसे करोगे तब भी 90 डिग्री रहेगा। समझ रहे हो बात को। तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये DL की, ठीक है। इस DL के साथ ये हमेशा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और आप क्या सोच रहे होंगे इसमें, ये टिल्टेड है, तो वो किसके साथ एंगल इमेजिन कर रहे हो आप, A के साथ इमेजिन कर रहे हो। A इसकी ऐसे नीचे होगी ना, तो आप A के साथ एंगल इमेजिन कर रहे हो। A के साथ नहीं करना, DL के साथ करना है। तो DL के साथ हमेशा ये क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, चाहे जैसा मर्जी हो जाए, ठीक है ना। समझ रहे हो, ये लाइन आप देख रहे होंगे। तो ये कैसे होगा, इसके साथ हमेशा 90 डिग्री पे होगी। क्लियर हो रही है बात इतनी। देखो इस चीज़ को मैं अगर यहाँ से समझाऊँ, ये DL है, ठीक है, ये DL है इस सर्कल का। अब ये ऐसे है R, है ना। अब यहाँ पर ये वाला एंगल देख लो ना, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला जो एंगल बन रहा है हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ऐसे कर लोगे तब भी 90 है, ऐसे करोगे तब भी 90 है। इसके साथ DL के साथ हमेशा ये क्या रहने वाला है, 90 डिग्री रहने वाला है। तो ये टिल्टेड है तो कोई बात नहीं, वो A के साथ अलग एंगल बना रहा है, लेकिन इस DL के साथ हमेशा कितना एंगल बना रहा है वो, 90 डिग्री। तो आप समझ रहे होंगे ये DL ऐसे इमेजिन करनी है आपको। अब समझो इस चीज़ को ऐसे, ये DL ऐसे है तो हमेशा ये कितना एंगल होगा, इस DL के साथ इसका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो DB कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से μ0/4 पाई IDL साइन 90 कितना होता है, 1। तो IDL रख देते हैं यहाँ, और ये R², और यहाँ लिख देते हैं साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर इतनी बात या नहीं, बता दो, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर तो आया ये DB। अब देखो ज़रा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी हमने जो बात की थी कि DB के दो कंपोनेंट थे, एक तो DB cos phi और एक DB sin phi, ठीक है। तो जो DB cos phi वाला है वो DB cos phi से कैंसिल होगा, तो नेट जो आएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वो किसकी वजह से आने वाला है, DB sin phi की वजह से आने वाला है, ठीक है। तो हम इस DB sin phi को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन एडिशन अब इन दो की नहीं होने वाली सिर्फ, समझ रहे हो क्यों। देखो ये तो हमने दो करंट एलिमेंट लिए थे, तो 2 DB sin phi आए। ऐसे ऐसे करते हुए पता नहीं कितने स्मॉल करंट एलिमेंट होंगे, तो उनके लिए सबके लिए DB sin phi आएगा, और उन सबके DB cos phi से कैंसिल आउट होंगे। समझ रहे हो बात को। तो ये होगा ही होगा। तो कई सारे DB sin phi होंगे ना, यहाँ तो हमने 2 बनाए हैं, तो 2 के लिए ये कर दीजिए। अब सबके लिए तो यहाँ बना नहीं सकते। तो यानी कि मतलब क्या है, इस DB sin phi की क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। तो ऐसे ऐसे वाले पार्ट हमने जोड़ दिए जितने भी थे इसमें। समझ रहे हो इतनी कहानी या नहीं। अभी धीरे धीरे समझ में आती है। देखो अभी सबसे पहले हम ये कंपोनेंट वाली बात लिख देते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि कंपोनेंट, तो ये चीज़ हमने लिख दी यहाँ कि कंपोनेंट DB इज अलोंग PT एंड PQ आर रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट्स, DB cos phi एंड DB sin phi। ये चीज़ आप कैसे समझ सकते हो, देखो PT है ये वाला PT, ठीक है। PT ने भी 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया, DB cos phi DB sin phi, और PQ वाले ने भी ऐसे किया, ये PQ है, ठीक है। ये P है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये P पॉइंट था, ठीक है। PQ और ये PT, ठीक है। PQ ने भी DB cos phi DB sin phi में इसको डिवाइड किया, ठीक है। और जो कंपोनेंट था DB cos phi वाला वो क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। समझ में आ रही है कहानी या नहीं, क्लियर है। अब देखो ज़रा, जो मैं आपको बात कह रहा था कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से होगी, ओनली DB sin phi, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यानी कि DB sin phi की इंटीग्रेशन कर दो, DB sin phi की इंटीग्रेशन कर दो। समझ रहे हो बात को या नहीं, बताओ, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। यहाँ कई लोग यहाँ क्लोज लूप भी लगाते हैं क्योंकि ये पूरा सर्कल है इस वजह से, तो ना भी लगाओ तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो मेन बात मैं आपको क्या समझा रहा था कि DB sin phi की इंटीग्रेशन क्यों हुई है। देखो यहाँ पर जो DB sin phi है, ये हमने तो 2 लिए हैं क्योंकि 2 करंट एलिमेंट लिए थे, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे करंट एलिमेंट होंगे, उन सबकी वजह से DB sin phi आएगा। तो उन सबको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा सबका। और सम हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन से करते हैं इनमें। तो इंटीग्रेशन क्या इस तरीके से चलेगी, ठीक है। अब इसमें देखो DB की जो वैल्यू है वो तो हमें यहाँ से पता चल रही है, यहाँ पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। और sin phi की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो sin phi की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए यहाँ पर चलते हैं हम। देखो यहाँ लिखते हैं हम, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है ये आपके पास, देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, देखो ये वाला क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास। कौन सा बन गया, ये PO, इसको भी नाम दे दो, यहाँ C दे दो एक नाम, ठीक है। तो क्या बन गया ये ट्रायंगल आपके पास, POC बन गया, ठीक है। POC में देखो अब sin phi की वैल्यू चाहिए। देखो
राइट एंगल ट्रायंगल ये इसकी वजह से है क्योंकि यहाँ ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाला भी यहाँ 90 है क्योंकि आपको पता है रेडियस और ये ऐसे सेंटर से एक लाइन जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था, इसके अंदर हमें पता है ये फाई है, ठीक है। तो साइन फाई निकल सकता है, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर याद हो, याद है वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करते थे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ होता था साइन, कोस होता था, और यहाँ पर आपके पास होता था टेन, और यहाँ पर क्या होता था आपके पास कोसिकेंट, और यहाँ सीकेंट, और यहाँ पर कोट होता था, ठीक है। तो साइन के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या बन जाता था, p/h बन जाता था। तो साइन फाई के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, p/h। तो यहाँ से देखो साइन फाई में p क्या होगा हमारे पास, सोचो ज़रा, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ये a है तो a आएगा, और h कितना है हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूज बन गई इसकी, ये क्या हो गई, r हो गई। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a/r। इसको मान लो थर्ड। अब देखो यहाँ पर नीचे देखो, ये इक्वेशन सेकंड थी, इसमें क्या था db और साइन फाई, db की वैल्यू ये रही फर्स्ट इक्वेशन वाली, वो यहाँ पर रखेंगे, और साइन फाई की वैल्यू अभी जो हमने बनाई है, ठीक है, जो इक्वेशन थर्ड नाम दिया है उसको भी यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। साइन फाई की वैल्यू कितनी आई है, a/r, वो यहाँ पुट कर देंगे, और ये db की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, कि पुट फर्स्ट एंड थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो ये देखो यहाँ पर पुट कर दिया हमने फर्स्ट एंड थर्ड को सेकंड में, तो देखो b इक्वल टू में इंटीग्रेशन था db साइन फाई था, db की वैल्यू ये रख दी हमने, ये वाली वैल्यू, db की ये वाली वैल्यू रख दी, और साइन फाई की वैल्यू क्या रख दी, a/r रख दी। क्या बताओ, इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, आ रहा है समझ में कैसे किया है, बताओ। तो देखो अब तो बस इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे हम, देखो ये म्यू नॉट 4 ये तो कांस्टेंट होगी वैल्यू, आई भी यहाँ कांस्टेंट ही रहेगा, और ये देखो ये आपके पास यहाँ कितना बन गया, ये r³ बन गया, ये r² और r³ बन गया, और ये a भी कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस थी ये सर्कल की, ठीक है। ये r क्या थी, दूरी थी dl और p पॉइंट के बीच की, और ये a क्या थी, रेडियस थी उस सर्कल की, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इंटीग्रेशन यानी कि सिर्फ किसकी होनी है, dl की होनी है, और ये आपको पता ही था dl की ही इंटीग्रेशन होती है क्योंकि dl ही स्मॉल पार्ट था उस सर्कल का, तो dl को ही हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो देखो dl की इंटीग्रेशन कहाँ तक चलेगी, देखो जैसे मैंने पहले भी आपसे ये बात की थी कि सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल की लेंथ कैसे होती है, पूरी की पूरी लेंथ कैसे हमें पता चलती है, उसकी सरकमफ्रेंस से, वो क्या होती है 2πr। r मतलब क्या होता है वहाँ पर, रेडियस होता है। अगर ये यहाँ पर क्या है, रेडियस r है, तो 2πr क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस होगी, यानी कि लेंथ होगी सर्कल की। अब यहाँ r नहीं है रेडियस, ठीक है, रेडियस क्या ली हुई है यहाँ पर हमने, a ली हुई है, ठीक है ना। ये रेडियस क्या थी यहाँ पर, a थी, तो ये कितना बन जाएगा, 2πa बन जाएगा सरकमफ्रेंस, समझ रहे हो कहानी को। तो ये कहाँ से कहाँ चलेगी इसकी लिमिट, जो पुट करेंगे 0 से लेके 2πa तक चलेगी। जैसे पहले हमने कहाँ तक किया था पिछली एप्लीकेशन में, 2πr तक किया था क्योंकि वहाँ रेडियस r ली थी, यहाँ पर रेडियस a है तो 2πa चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको कहानी पता है आगे की, सिंपल है सारी, क्या है देखो, म्यू नॉट आई a अपॉन में 4πr³, ठीक है, म्यू नॉट आई a और 4πr³। dl की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, l, और इसकी ये लिमिट हो जाएगी 2πa और ये 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो म्यू नॉट आई a अपॉन में 4πr³, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, 2πa - 0। कैसे लिखी बताओ, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे इसमें म्यू नॉट आई a अपॉन में 4πr³, ये कितना आ गया यहाँ से, 2πa आ गया, कितना आ गया ये आपके पास, 2πa, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा ये आपके पास। देखो क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, ये 2πa इंटू a क्या बन रहा है, a² बन जाएगा। देखो ज़रा कैसे, म्यू नॉट आई, ये बन गया आपके पास 2, या ये 2 आगे भी लिख सकते हैं हम, पाई और a इंटू a² बन गया ये, ठीक है। तो πa² क्या होता है, πr² क्या होता है, अगर रेडियस r हो तो πr² क्या होता है, एरिया होता है सर्कल का। तो यहाँ πa² है क्योंकि रेडियस a है, तो πa² को मैं एरिया लिख सकता हूँ, बताओ। देखो कैसे, ये चीज़ आ गई, और नीचे क्या है हमारे पास, ये 4πr³, ये है b, ठीक है, और b की वैल्यू यहाँ से और क्या आ जाएगी आपके पास, म्यू नॉट, देखो मैंने यहाँ पर ना एक लाइन लगा देता हूँ ऐसे, क्योंकि अभी ये थोड़ा लंबी जाएगी डेरिवेशन इस वजह से, ठीक है। तो म्यू नॉट आई और ये 2 आगे रख देता हूँ यहाँ, ठीक है, और πa² को मैं लिख देता हूँ एरिया, और नीचे आ जाएगा आपके पास ये 4πr³, समझ रहे हो, और यहाँ लिख देते हैं हम
कि एरिया किसको लिया हमने, पाई ए स्क्वायर को लिया है। ठीक है, बात इतनी क्लियर। तो ये आ गया आपके पास 2 म्यू नॉट आई ए अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर। ठीक है, और एक ये भी ध्यान में रखना, इसका भी अभी यूज़ करेंगे हम आगे। ठीक है, स्पेशल केस में, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रिज़ल्ट। ठीक, तो ये है मेन रिज़ल्ट यहाँ से जो आया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, कितना 2 म्यू नॉट आई ए अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो, मतलब कॉइल कैसी हो, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से थी ना, ऐसे हो जाए तो कई सारे टर्न्स आ गए ये वाले सर्कल के। ठीक है, तो इसका एक्सिस क्या होगा, इसके बीच में से निकलेगा, ऐसे इनके बीच में से ऐसे एक्सिस निकलेगा। ठीक है, और मान लो वही पी पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे फिर कैलकुलेट, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे या जितने सर्कल हैं ये, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि अगर हम क्या बोले यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, दिख रहा है, छोटा तो नहीं लग रहा, इन द कॉइल, तो क्या होगा, देखो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही हमने पिछली एप्लीकेशन में भी किया था, बस जो है हमारे पास इसमें n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 म्यू नॉट आई ए अपॉन में देखो 4 पाई आर क्यूब है, n से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं n यहाँ लगा रहा हूँ, n यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, देखो एन आई ए जो होता है ना, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बट एन आई ए इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम m से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, ये b इज़ इक्वल टू में 2 म्यू नॉट, और ये एन आई ए की जगह क्या रख दूँ मैं, m, और ये क्या आ गया 4 पाई आर क्यूब, कितना आ जाएगा ये 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट ये भी आया है, क्लियर, और एक ये था। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हो m क्या है, यहाँ लिख दो वेयर m इज़ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके बीच में होता था, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर भी चार्ज तो नहीं होगा, क्या होगा, पोल होंगे। मैग्नेट में क्या होता है हमारे पास, पोल्स होते हैं ना जैसे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम कैसे पता कर सकते हैं, एक होता है साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में। ठीक है, यहाँ पर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है मैंने बस आपको बता दिया कि m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और यहाँ से हम इसके SI यूनिट भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो देखो SI यूनिट क्या होंगे इसके, देखो n तो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब कांस्टेंट इन द सेंस न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू में क्या होगा, कोई उसका यूनिट तो होता नहीं है, आई के होते हैं, आई का क्या यूनिट होगा, एम्पियर, और एरिया के क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसके SI यूनिट होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ समझ में आ रही है कहानी तो। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके स्पेशल केस की तरफ। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, मैथमेटिक्स ही है पूरा का पूरा। ठीक है, तो स्पेशल केस मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो स्पेशल केस इसका, स्पेशल केस में देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले तो ये जो ट्रायंगल था आपके पास POC वाला, इसमें लगा हुआ पाइथागोरस। ठीक है, तो देखो अप्लाई पाइथागोरस इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है ये, POC में लगाओ जी। देखो दिख ही रहा है आपको यहाँ से, ये क्या है हमारा बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है इसमें r, तो r का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है a का स्क्वायर, और बेस है x का स्क्वायर। क्लियर, और r यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से a स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा, और इस रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं हम रूट को इस तरीके से। पता ही होंगी ये सब बातें तो आपको, नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्लियर, अब देखो अगर आप इसमें समझ पा रहे हो, अगर ये वाला देखें हम, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसमें देखो ज़रा ध्यान से, इस फॉर्मूले में हम ये पुट करें r की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझ रहे हो ना, ये मैंने क्यों यहाँ पर ब्लॉक में किया था, ताकि आपको ये समझ में आए कि इसको यूज़ करना है हमें यहाँ पर। तो देखो म्यू नॉट आई, अभी समझ में आ जाएगा क्यों यूज़ कर रहे हैं इसी कोई पार्ट को। ठीक है, नीचे वाला नहीं यूज़ किया हमने। ठीक है, 2 पाई a स्क्वायर, और ये क्या है 4 पाई, और r क्यूब है, क्यूब है तो मतलब r की वैल्यू देखो ये है हमारे पास a स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर 1/2, और r क्यूब है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो क्या आ जाएगा ये 3/2 होगा।
देखो ना, ये ऐसे था, यहाँ पर देखो ए स्क्वेयर प्लस में एक्स का स्क्वेयर की पावर 1/2, और ये पूरा आर है, आर का है क्यूब, तो ये क्यूब यहाँ आएगा तो 3/2 बन गया। समझ रहे होंगे ये सब चीज़ें, तो बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। ये चीज़ आई। अब देखो यहाँ पर हम स्पेशल केस में जो मेन बात करते थे कि अगर हमारे पास जो पी पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए हम आपके पास ओ पॉइंट के, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है अगर ये दूर है, ये हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पास हो जाए, यहाँ पर कहीं हो जाए, तो होगा क्या, अगर पी पॉइंट इसके बहुत ज़्यादा पास हो गया तो इसका मतलब ये एक्स छोटा हो जाएगा, और ये एक्स इतना छोटा हो जाएगा कि ए के कंपैरिजन में हम इसको क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इसके नियर पी पॉइंट ले लें अगर हम, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर ले लिया मैंने, ठीक है, तो x क्या हो गया, ये वाला x बहुत छोटा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू a, तो x को हम 0 मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो कैसे, इफ़ पॉइंट p लाइज वेरी क्लोज टू पॉइंट o, तो इसका मतलब क्या है कि a बड़ा है एज़ कम्पेयर टू x, सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया a बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 0 मान के चलेंगे, तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू b की वैल्यू में, देखो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 सॉरी म्यू नॉट आई 2 पाई a स्क्वेयर, और देखो ये रहा नीचे 4 पाई, अब देखो x तो 0 हो गया, ये तो 0 ही हो गया, a स्क्वेयर बचा, a स्क्वेयर की पावर 3/2 है, a स्क्वेयर की पावर कितनी है हमारे पास, 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, a क्यूब बन गया, x तो 0 ही हो गया था, ये तो खत्म ही होगी कहानी, a स्क्वेयर की पावर 3/2 है, a स्क्वेयर की पावर 3/2 तो मल्टीप्लाई होगी पावर, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो कितना आया ये b आपके पास, म्यू नॉट आई 2 पाई, और ये देखो यहाँ से आपके पास a क्यूब है, ये कितना है, ये देखो a स्क्वेयर, ये वाला a स्क्वेयर, और नीचे कितना बचा आपके पास 4 पाई a क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप स्क्वेयर जो है, ये स्क्वेयर इस क्यूब से कट रहा है, और एक a बच गया नीचे, और ये पाई से पाई कैंसिल, और 2 से ये 2 आ गया, ठीक है। तो कितना बचा, देखो ये म्यू नॉट दिख रहा है सभी को, म्यू नॉट, और ये बचा i, और नीचे कितना आ गया आपके पास, ये 2, और ये बचा a। तो ये चीज़ देखो, एक चीज़ इसमें आपको पता चलनी चाहिए कि जो हमने सेंटर के लिए निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, वो भी तो यही था, म्यू नॉट आई अपॉन में बस 2r था, r क्योंकि वहाँ रेडियस सर्कल की r ली थी, यहाँ रेडियस सर्कल की a ली है, फॉर्मूला तो वही बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो हमने निकाल ली है चीज़ें, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमने स्पेशल केस करके देखा कि p इज़ वेरी क्लोज टू पॉइंट o, देखो p इज़ वेरी क्लोज टू पॉइंट o का मतलब क्या है कि बिल्कुल ही सेंटर पे आ गया, समझ रहे हो, आप मान सकते हो ना ये p कहाँ लाई कर रहा है, अगर ये x 0 ही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल इसके सेंटर पे ही मान के चल रहे हैं या नहीं, वह तो इतनी पार्ट में लेके चल रहे हैं हम, ताकि a के कंपैरिजन में x बहुत छोटा है तो वो 0 लेके चल रहे हैं। लेकिन आप इसको इमेजिन करो कि आप x को बिल्कुल ही 0 मान के चल रहे हैं, तो ये p कहाँ लाई कर रहा है, एक तरह से सेंटर पे लाई कर रहा है, और सेंटर पे अगर वो लाई कर रहा है तो आंसर हमारा वही आना चाहिए था जो फर्स्ट एप्लीकेशन में था, तो वही आया है, देख लो जो फर्स्ट एप्लीकेशन में था वही आ रहा है, म्यू नॉट i/2a, वहाँ पर बस r था क्योंकि वो सर्कल की रेडियस r थी, यहाँ पर रेडियस की सर्कल कितनी है, a है। बताओ जी, ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना अच्छे से, और समझ में आया ही होगा, समझ में अगर नहीं आया होगा तो यार एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है, तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।